Hello everyone, let's continue with the transaction. So in transaction we'll discuss about the serializability, how to check the serializability. How to check the serializability. Okay, so assume that S is a schedule which is a concurrent schedule. S is a schedule which is concurrent schedule, and S dash is a schedule which is a serial schedule. Serial schedule. Okay, so in that case, just a minute. Yes. So S is a concurrent schedule and S dash is a serial schedule, right? So we can say that S and S dash, S and S dash are equal. S and S dash are equal if and only if every read operation of S and S dash S and S dash should be same. S and S dash should be same. Second thing, that every final write of data item, every final write of data item in S and S dash should be same. Should be same. Okay, so here we can say if S is a concurrent schedule and S dash is a serial schedule, then S and S dash are equal if and only if every read operation of S and S dash should be same. S और S dash के जो read operations होंगे वो क्या होने चाहिए, that should be same, and every final write of a data item in S and S dash should be same. S और S dash के जितने भी डेटा आइटम्स होंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग फाइनल राइट क्या होना चाहिए, that should be same, right? So these are the two conditions we'll have to check. Now we'll take example and understand in better way. So here T1 is a schedule given, not T1, this S is a schedule given, and T1 and T2 are the two transactions, and here it is read 1A, read 1A, read 2A, then write 1A, then write 2A. Assume that these are the operations given in schedule S, right? So corresponding this concurrent schedule, there can be the two serial schedule. So first serial schedule is this one, and second serial schedule is this one.
a minute. So here it is T1, T2. So this schedule is T1, then T2, right? And name for this schedule is S dash, right? So here it is a read 1 A, then write 1 A. तो इसमें पहले T1 के जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी ऑपरेशंस होंगे उनको परफॉर्म किया जाएगा, उसके बाद T2 के जो ऑपरेशंस होंगे उनको परफॉर्म किया जाएगा. So here it is read to A and write to A. ठीक है, इसके ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाएगा. दूसरा क्या है, दूसरा हमारा शेड्यूल रहेगा दैट इज एस डबल डैश, एंड हियर आल्सो ट्रांजैक्शन T1 एंड T2. और ये जो ट्रांजैक्शन रहे, ये जो शेड्यूल रहेगा, ये रहेगा T2 देन T1, T2 देन T1. T2 देन T1 मीन्स पहले T2 के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, दैट इज R2A, W2A, and then R1A and W1A, R1A, W1A, right? So this is the schedule S2, S2 or we can say S double dash, right? तो अब क्या करना पड़ेगा, अब अपने को चेक करना पड़ेगा कि every read operation of S and S dash should be same. Let me take this S. तो read operations क्या है, ये वाला read operations है, right? तो यहाँ पे भी read operations हो रहा है, और इससे पहले कोई write हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो यहाँ पे भी कोई write नहीं हो रहा है. उसके बाद ये वाला read operation है, ये वाला रीड ऑपरेशन हो रहा है, और इससे पहले कोई राइट नहीं हो रहा. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे W1 ऑफ A, डेटा आइटम A को यहाँ पे राइट किया गया है, फिर रीड किया गया है, राइट. बट यहाँ पे क्या नहीं हो रखा, इससे पहले कोई राइट नहीं हो रखा है, राइट. बट यहाँ पे क्या हो रखा है, इससे पहले राइट हो रखा है. इसका मतलब रीड ऑपरेशन दोनों के सेम नहीं है, राइट. तो इन दोनों के रीड ऑपरेशन क्या नहीं है, सेम नहीं है. इस वजह से ये इक्वल नहीं है. S इज नॉट इक्वल टू S डैश, S इज नॉट इक्वल टू S डैश, राइट. और ये हो गया. और फाइनल राइट भी चेक करना है, तो प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज डिक्लेयर हो चुका है कि S एंड S डैश आर नॉट इक्वल. ओके, एक बार कंफर्म करेंगे, यहाँ तक सबको क्लियर है. क्लियर है. ओके फाइन. सो नेक्स्ट थिंग, ओके फाइन. तो नेक्स्ट थिंग इज फाइनल राइट. फाइनल राइट कैसे देखते हैं वो चेक करना है. तो एवरी फाइनल राइट ऑफ डेटा आइटम इन S एंड S डैश शुड बी सेम. जो भी डेटा आइटम होंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करना है, फाइनल राइट देखना है अपने को. तो यहाँ पे डेटा आइटम क्या है, डेटा आइटम इज A. तो A के कॉरस्पॉन्डिंग फाइनल राइट कौन कर रहा है, फाइनल राइट यहाँ पे हो रहा है ना, तो ट्रांजेक्शन T2 कर रहा है, तो T2 कर रहा है. व्हाट अबाउट हियर, फाइनल राइट ऑफ A के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे फाइनल राइट क्या है, कौन कर रहा है, T2 कर रहा है. तो फाइनल राइट तो इन दोनों के सेम है. फाइनल राइट यहाँ पे भी T2 है और यहाँ पे भी T2 है, यानी कि डेटा आइटम A के कॉरस्पॉन्डिंग फाइनल राइट दोनों में सेम है. इस वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट मेजर रीजन इज दिस वन, ये जो रीड है इससे पहले कोई राइट नहीं हुआ है, बट यहाँ पे रीड होने के बाद, रीड होने से पहले राइट हो रखा है, राइट.
ये प्रॉब्लम कर रहा है, इस वजह से एस और एस डैश क्या है, इक्वल नहीं है, राइट, दे आर नॉट इक्वल। व्हाट अबाउट दिस वन, सेकेंड थिंग, अब ये वाला और ये वाला चेक करेंगे, ये तो चेक कर लिया, अब ये वाला चेक करेंगे। तो यहाँ पे इनिशियल रीड कौन कर रहा है, इनिशियल रीड की बात नहीं है, एवरी रीड ऑपरेशन देखना है अपने को, इनिशियल की बात नहीं है। रीड ऑपरेशन यहाँ पे कौन कर रहा है, T1 कर रहा है, और यहाँ पे रीड ऑपरेशन T1 कर रहा है, और इससे पहले यहाँ पे कोई राइट नहीं हो रखा है, बट यहाँ पे क्या हो रखा है, इससे पहले राइट हो रखा है, राइट हो रखा है। इसका मतलब ये रीड ऑपरेशन यहाँ पे सही नहीं है, यानी कि दोनों के रीड ऑपरेशंस में डिफरेंस है, बिकॉज ये वाला विदाउट राइट है और यहाँ पे ये राइट होके आ रहा है, राइट। इसका मतलब रीड ऑपरेशंस आर नॉट सेम। इफ रीड ऑपरेशंस आर नॉट सेम, वी कैन से एस इज नॉट इक्वल टू एस डबल डैश, एस इज नॉट इक्वल टू एस डबल डैश, राइट। तो ये इक्वल नहीं रहेगा। व्हाट अबाउट द फाइनल राइट, एक बार एक भी कंडीशन फेल कर गई तो डिक्लेयर कर देंगे कि ये इक्वल नहीं है। मैं प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, फाइनल राइट इसका क्या होगा। तो इसका फाइनल राइट कौन कर रहा है, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग फाइनल राइट कौन कर रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है फाइनल राइट, इसका मतलब T1 कर रहा है। तो इसके तो फाइनल राइट भी सेम नहीं है, राइट, फाइनल राइट ऑल्सो डिफरेंट, right. So finally we can say that s is not equal to s dash, s is not equal to s double dash। तो इनमें से किसी के भी इक्वल नहीं है, तो फाइनली ये कह सकते हैं कि शेड्यूल s इज नॉन सीरियलाइजेबल, शेड्यूल s इज नॉट सीरियलाइजेबल। शेड्यूल एस इज नॉट सीरियलाइजेबल। ऐसा ही होना चाहिए था ना भाई, या तो इसके इक्वल आ जाता या इस वाले सीरियल शेड्यूल के इक्वल आ जाता, किसी एक के भी इक्वल आ जाता, फिर तो बोल देते कि शेड्यूल क्या है, सीरियलाइजेबल है। बट अब ये किसी के भी इक्वल नहीं है, इसके इक्वल भी नहीं है, इसके इक्वल भी नहीं है, तो क्या कहेंगे, शेड्यूल इज नॉट सीरियलाइजेबल। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, जल्दी जल्दी से रिप्लाई कर देंगे। ओके फाइन। Now let's take another example. Okay, fine. This is the schedule S given. Here transaction T1, here transaction T2, here read of A, then write of A,